السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، وطن عزیز کے صحت کے نظام کو سمجھنے کے لیے آپ کو سیدھا لیے چلتا ہوں ایک سرکاری اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں۔ نہیں جنید صاحب، آپ کو اتنی جلدی نہیں سمجھ آنی۔ آئے پنکھا تیز کر دیں، آپ کی مہربانی، مجھے بڑی سر ٹھنڈ لگ رہی ہے، پنکھا تیز کر دیں۔ لائٹ نہیں ہے، پنکھا تیز نہیں ہو سکتا۔ بات تو آپ پروگرام میں بیٹھ کے یہ محکمہ صحت سمجھنا چاہتے ہیں، مجھے ساری زندگی گزر گئی ہے، میں نہیں سمجھ سکا۔ جنید صاحب، سفارش نہیں کیا تو اسپتال میں زندگی نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی جاننے والا افسر نہیں ہے تو آپ کو بیمار ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کسی وزیر مشیر کے رشتہ دار نہیں ہیں تو آپ کو بیماری لگنی ہی نہیں چاہیے۔ یار، ہر وقت سرکاری ہاسپٹلز میں ہزاروں لوگوں کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، کیا وہ سارے کے سارے وزیر مشیروں کے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ نہیں جنید صاحب، میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا حال سنانے لگا ہوں۔ او بے جا، آنکھوں دیکھا حال سنانے لگا ہوں، ایڈا تو حسن جلیل۔ یہ دیکھ لیں جنید صاحب، یہ دیکھ لیں، یہ جان بوجھ کے مجھے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، پھر ان کو کچھ کہیں تو آگے سے کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، تم ڈاکٹر کو جگت نہیں لگا سکتے۔ اکثر اس طرح کی جگتیں تو آپ کو زیب نہیں دیتی ہیں، آپ کی پرسنالٹی سے میچ نہیں کر رہی۔ لو جی، اینکر نے بھی جگت کر دی۔ انہوں نے تو فلسفہ بولا ہے۔ یہ فلسفہ ہے، پرسنالٹی کو زیب نہیں دیتا۔ جگت جنید صاحب، میں چیخ رہا تھا، میری پنیوں میں بڑی شدید درد ہے۔ ادھر سے ایک مریض آیا ہے، اس کے ساتھ میں نے خود دیکھا ہے، سپاہی بھی تھے، 3-4 بندے بھی تھے۔ ان کی اس طرح کی دوڑیں لگی ہیں، اس کے پیچھے پڑ گئے، کوئی کسی کو دیکھ ہی نہیں رہا۔ میں صبح کا چیخ رہا ہوں، میری پنڈلیوں میں درد ہو رہی ہے۔ دھیمے، وہ ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ تھا، اس کو دیکھنا پہلے تھا، تمہارے پنڈلیوں کا درد تو 10 سال سے ہو رہا ہے۔ وزیر مشیر نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تو غریب آدمی کو تو ہارٹ اٹیک بھی ہو، آپ نے نہیں پوچھنا۔ آپ پوچھتے ہی اس کو جس کی سفارش ہو۔ تمہاری پنیوں میں درد ہو رہا تھا، اور پنی بھی تمہاری وسیم اکرم جتنی پنی ہے۔ نہیں تو جنید صاحب، کیا پنیوں میں درد بیماری نہیں ہے؟ یار، اتنی سویر تو نہیں ہے جتنی ہارٹ اٹیک۔ نہیں تو ہے تو بیماری نا، مگر یہ چونکہ غریب آدمی کو ہے اس لیے انہوں نے نہیں دیکھنا۔ وہ ہارٹ کی بیماری اللہ نے ایک وزیر کے رشتہ دار کو لگا دی ہے، سارے اسپتال کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ تمہاری سوچ کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے دھیمے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے تمہارے ہارٹ اٹیک ہوتا، اس کے ہوتی پنی میں درد، تو پہلے تمہیں چیک کرنا تھا۔ برخوردار ندیم صاحب، میں نے آپ کو 100 مرتبہ کہا ہے کہ تینوں گول گپے کھواواں۔ اوہو، ایک تو ندیم آپ میری پوری بات نہیں پوری سنتے۔ سنی سی جنید صاحب، گول گپے والی ریڑی تے کھلو کے کہندے نے یار دیکھو یہ چیز ایسی ہے جڑی میرے منہ چ پوری آندی ہے۔ اوہو، برخوردار ندیم صاحب، میں نے آپ کو 100 مرتبہ کہا ہے کہ یہ جو آپ کا پنڈلیوں میں درد ہے، اس کا علاج ان ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج ہی دیسی طریقے سے ہونا ہے۔ ہاں، اس کے پاس ہے علاج، دیسی دوائیاں۔ سارا دن کاٹھے بیر کھاتا رہتا ہے، اگلے دن انہوں نے گٹکاں دی دوائی بنا دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کاٹھے بیر دیسی کھا کے دیکھیں، کتنے معدے کے لیے مفید ہیں۔ آہو تے لوکاں نوں دیا کرو نا، آپ نہ کھایا کرو۔ تو میرے ساتھ کیا معدہ نہیں لگا ہوا؟ نہیں، گودام۔ حکیم صاحب، دھیمے کی پنڈلیوں میں درد ہے، آپ اس کو معدے کی دوائی دے رہے ہیں۔ اور یار، پنڈلیوں میں درد ہے تو کیا بات ہے؟ ایتھوں مینوں دیو زیتون دا تیل، آ کڑے کڑے ایتھوں چکو اپنے، ایتھے بچھاؤ صاف۔ اب دیکھو میں انہاں دی پنڈلیاں جو ملیاں انج کر کے درد جاندی دیکھنا کتھے ہے۔ دنیا کے واحد حکیم صاحب ہیں جو زیتون کے تیل کی مالش کرتے ہوئے 2 گھونٹ لگاتے بھی رہتے ہیں زیتون کے تیل کے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ جنید صاحب، زیتون تے ہن سارے ہی کھان پین ڈے نے، میں تے کری حکیم صاحب نو صرف اینا دس بیٹھا کہ ساڈا سروں دا تیل بالکل خالص ہوندا ہے، تے ہاتھ تے روڑن دی بجائے منہ چ روڑ لے ہونے۔ اور میں کہ سروں دا تیل پی گئی تے کہندے نے کیوں سروں دا ساگ نہیں کھائی دا؟ سگوں شیشی مکن تو پہلے ایک مکئی دی روٹی بھی دیو نال۔ اور یار چھوڑو ان کو، دھیمے تمہیں 2 ٹیسٹ لکھ کے دیے تھے، کیا ان کا رزلٹ آیا؟ اے لو، 2 ٹیسٹ؟ اتنا پریشان ہونے والی گل کوئی نہیں، پاکستان آسٹریلیا دے 3 ٹیسٹ نے، تینوں 2 لکھ کے دیتے نے۔
ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੀ ਛੱਡ ਆਵੋ ਜਾ ਜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਵੋ जब तुम टेस्ट नहीं करवाओगे तो इलाज तुम्हारा कैसे मुमकिन है? जुनैद साहब ये उन गल पे बदल देने असल बात ये है टीवी के ऊपर बताने वाली कि सिर्फ ये वजीरों मशीरों को देखते हैं, ये बड़े बड़े लोगों को जिनकी सिफारिशें आती हैं ये सिर्फ उनका इलाज करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों में ये कल्चर बहुत आम है, बगैर सिफारिश के डॉक्टर या ये पैरामेडिक्स से किसी को हाथ नहीं लगाते। लेकिन उनकी बात तो सुन लो, वो कह रहे हैं कि जिस मरीज पे तुम नाला हो वो कोई मतलब सिफारिशी मरीज नहीं था, उसको हार्ट अटैक हुआ हुआ था यार। जुनैद साहब मैं खुद ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ खुद ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। यार अगर उसको हार्ट अटैक हो गया तो वो फाइलें फेंक देता, पुलिस वालों को गोली मार देता, क्या करता? ਤੁਸੀਂ ਵੀ जुनैद साहब ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। सारी दुनिया को देख रहा है कि क्या कर रहा है, कोई अपना नहीं देख रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ दिमे 12 साल से तुम हॉस्पिटल में हो, क्या तुम्हारा केयर नहीं होता? तुम्हें वक्त पे दवाई नहीं मिलती, वक्त पे खाना नहीं मिलता? ਐਡਾ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸਟਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ये पता क्या कह रहे थे? कहते थे जिस वार्ड में तुम दाखिल हो उस वार्ड का नाम दीमा वार्ड रखने लगे हैं ये। ईमान किन्ने को महीने और रंग ते रख देंगे। अरे नदीमुल हसन आरिफ साहेब, मैंने आपको कितनी मर्तबा अर्ज किया है कि ये एलोपैथिक दवाइयों की गर्मी है। आ जाइए ठंडक की तरफ और राहत की तरफ आ जाइए। ओ बैजा हकीम एडा तू जनाब बाग च सिर दरी बिछा के बैठा हुंदा, ठंडक राहत। ये दर्दों की वजह से आपने नहीं जाना, ये एलोपैथिक दवाइयां आपको मार देंगी। अच्छा, आपका पूरा नाम नदीमुल हसन आरिफ है? हाँ जी। ए देखो ना आज रखिया जे मैं कबड्डी का वर्ल्ड कप यही कराऊंगा। देखो जुनैद साहब जरा देखो हुण साडे नां ते भी इतराज है इन्हां नूं। जुनैद साहब यकीन करें आप, मैं जब इधर दाखिल हुआ था ना ये भी नया ये हाउस जॉब करके आए थे। बता रहे कह रहे हैं कि तुम जुनेजो दौर से दाखिल हो अस्पताल में। जा जा बिल्कुल। जुनैद साहब हमारे हॉस्पिटल का पहला मरीज ये था। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हाय हाय कितना नरम लहजा, इसके सामने गाने गाने लग जाओ। ਹਾਏ ਜਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ, ਵਰਨਾ ਲੜਾਈ ਤੇ ਪੱਕੀ ਸੀ। अच्छा डॉक्टर शमसुल हक साहब, आप प्लीज एक बार। डॉक्टर शमसुल हक। हाँ हाँ डॉक्टर साहब से बात जा करें। जा जा। ये ਤੁਹਾਡਾ पूरा नाम शमसुल हक है? हाँ ओ मेरे अमाल का, मेरे नदीमुल हसन आरिफ दे पीछे पै गया सब ते आप शमसुल हक लई फिर रहे हो। वाह रे वाह, मैं तो सुन के ही हक हो गए जनाब। ਆਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੈਗਨ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੰबर पर बताएं मैं गाड़ी कैसी चला रहा हूँ। और हर बंदा काल मिला के कह रहे होंगे जी गड्डी दा ते पता नहीं, ये खुद बहुत बुरा है जनाब। अभी मैं खुदा का नाम लो, तुम अपने डॉक्टर को, अपने फिजिशियन को, अपने हीलर को, अपने मसीहा को इस तरह मजाक उड़ाते हो उसका यार। ऐसा खुदा वास्ते मैनू गूंगा कर दियो, इनू इन्ने खिताब ना दियो। और रब दा वास्ता जे वेखो ते सही इन्हां मरीज रोल छड्डे ने हस्पतालां च, तुसीं उन्हां नूं इन्ने लकबां नाल नवाजण दे। ओ ईमान मैं तुहानूं आप दस रहा वां, खुद देखिया मैं वजीरां दे अगे पिछे हुंदे आ इन्हां नूं। ओ बंदा जिहड़ा उहने मैनूं आप दस्सिया, कहंदा सोहणिया इलाज कराना ही ते तूं ही किसे तगड़े बंदे दा फोन करा। चुप कर जाओ दीमे, अपना मुंह बंद कर लो। मैं वजीरों मशीरों से मुतासर होता तो मेरे पास गाड़ियां होती बड़ी बड़ी। यकीन करें 70 रखी है मैंने, और विचों विचों जाना मैं, बाहरों मेन रोड तो जाता ही नहीं। क्यों? वो मैकेनिक का 2400 रुपये देना मैं। उधार तो चलता रहता है बस, और अब बदतमीज मोटरसाइकिल खिला देता, मैनू कहता जा रिक्शे जाओ। अब इतना बड़ा डॉक्टर, इतना काबिल डॉक्टर रिक्शे पे जाता है, अच्छा लगता है? हाँ नहीं 70 भी अच्छा लगता। चलो डॉक्टर साहब 70 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਤਫ ਫਿਲਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करने लगा था कि दीमा जब भी शो में आता है इसी तरह के शिकवे शिकायतें करता है, आप इसके एक बार सारे टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली इसका मेडिकल चेकअप क्यों नहीं करवाते? मामला क्या है पता सुन। जुनैद साहब ये तो उदों कराणगे ना जदों मेरा वजीर दा फोन जाए। और नहीं यार तुम एक ही साडे कोल वजीर ही नहीं ते असीं कितों ठीक हो। नहीं 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 बताया ना जी। कौन सा इसका टेस्ट नहीं करवाया?
पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक एक एक चीज चेक की है, कुछ भी नहीं है बाय गॉड, कुछ भी नहीं है। नहीं, सब सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं। इवन जब हर बंदे को कोरोना हुआ हुआ था, हमने इसका भी टेस्ट करवाया कोरोना, तो वो भी नेगेटिव निकल आया। हमने तो ये डिसाइड कर लिया कि ये बंदा ही नेगेटिव है। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਸ਼ੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਧੀਮੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 36 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਸਟ भी होंगे। दिमे तुम जो मर्जी अड़प शड़प करते जाओ यार, मुझे तो सिर्फ इस बात का पता है कि पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर्स की जहां पे बस हो जाती है ना, वहां पे डॉक्टर शमसुल हक वारसी साहब का नाम आता है। Yes, उनको बुलाओ। यस दिस इज ट्रू। ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? डॉक्टर शमसुल हक वारसी। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਮਸੁਲ ਹਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਰਸੀ ਵੀ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸੀ ਜੇ। तो तुम कैसे लगोगे जब कहेंगे नदीम अल हसन आरफ साहब दोपहर का खाना ले जाएं आप? ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੀਮਾ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਸਤਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਲਾਟੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਖੱਬੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਟੁੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਾਰਸੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਮਸੁਲ ਹਕ ਵਾਰਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੈ। वही बात हुई ना जुनैद साहब, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। गजाला मैं बेसुरत नहीं हुआ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। निज़ाम इंसाफ पे बोझ बढ़ गए। आप पूछेंगे वो कैसे? आज से कुछ अरसा पहले तक जब मोहल्लेदारी का निज़ाम मजबूत होता था, तो ये जो छोटे मोटे गली मोहल्ले के झगड़े हुआ करते थे, ये गली मोहल्ले में ही तय कर लिए जाते थे। भाईजान, हम अक्सर अपने शो में इस बात का तज़किरा करते हैं कि हमारा जो पुराना मोहल्लेदारी का एक निज़ाम होता था जी, मैं निज़ाम का लफ्ज़ जो है बाकायदा दानिस्ता तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक सिस्टम होता था। जी सही। मोहल्लेदारी एक सिस्टम के तहत चला करती थी। मोहल्ले में जो बुजुर्ग हुआ करते थे उनकी एक अनअनाउंस्ड कमेटी सी हुआ करती थी, एक काउंसिल हुआ करती थी मोहल्ले की, जिसमें मोहल्ले के प्रेसिडेंट समझा जाता। एग्जैक्टली बगैर ऐलान किए उनका प्रेसिडेंट, मगर ये जरूर कहते थे कि यार काजी फाजिल साहब नु बुला लो। अच्छा, अब हम इस बात का भी बहुत दफा जिक्र कर चुके हैं कि मोहल्लेदारी जो है वो कमजोर पड़ती जा रही है। उसका एक सबसे बड़ा जो नतीजा निकलता है ना भाईजान, वो हमारे निज़ाम इंसाफ पे बोझ बढ़ गए। आप पूछेंगे वो कैसे? आज से कुछ अरसा पहले तक जब मोहल्लेदारी का निज़ाम मजबूत होता था, तो ये जो छोटे मोटे गली मोहल्ले के झगड़े हुआ करते थे, ये गली मोहल्ले में ही तय कर लिए जाते थे उन्हीं बुजुर्गों के जरिए। और कुछ जो झगड़े थे वो खवातीन की भी एक कौंसिल हुआ करती थी, वो आपस में ही सुलझा लिया करते थे। बाकायदा जैसे गाँव में पंचायत होती है, इसी तरह शहरों के इन मोहल्लों में ये बुजुर्ग ये काम अपनी सतह पे कर लेते थे और थाने कचहरी तक जाने को मोहल्ले की बेइज्जती तस्वर किया जाता। जी जी जी, मोहल्ले में पुलिस आना इंतहाई बेइज्जती वाली बात समझी जाती थी, शर्मिंदगी वाली बात होती थी, या किसी का थाने में जाना बड़ी शर्मिंदगी के बायस होता था। और लोग वाकई अपने प्यार मोहब्बत के साथ ही सारे मसले हल कर लेते थे इस तरह के मोहल्लेदारी के। ये पिछले दिनों में लाहौर के एसपी हैं ईसा सुखेरा साहब, वो सोशल मीडिया पे किसी को इंटरव्यू दे रहे थे। वो बता रहे थे कि उनकी सर्विस का जो तजर्बा है वो ये बताता है कि शहरों में 50% से ज़्यादा ऐसे केसेस पुलिस तक पहुंचते हैं जो पुलिस तक नहीं पहुंचने चाहिए, वो मोहल्लों में ही हल हो जाने चाहिए। यानी इतने छोटी सतह के वो मामलात होते हैं। लेकिन जब छोटी सतह का मामला पुलिस तक जाता है, फिर वहां खराबी क्यों पैदा होती है वो आपको अर्ज करता हूं। बड़ी अजीब वजह है, क्योंकि लड़ाई तो बहुत छोटी सी बात पे होती है, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि जनाब ये तो पुलिस तक ये मामला तो जाना ही नहीं चाहिए। फिर वो मामला जो है फैब्रिकेट करके खुद साख्ता मामला बड़ा करके
मसनूई तौर पे बड़ा करके, दूसरे लफ्जों में जाली केस बना के पुलिस तक ले जाने की कोशिश की जाती है। अब फिर उधर मुकाबला शुरू हो फिर जाता वहां पर मुकाबला जाहिर है है। कि जितना गिनने में थे हारना गिनने, और फिर मुखालिफ जो है वो भी एक केस फैब्रिकेट करता है, वो भी एक केस घड़ता है। फिर वकील किए जाते हैं, वो बड़ी छती मशवरे देते हैं कि भाई जी इस तरह नीचे जान छुड़नी, हाँ, और ऐ भी विच पाओ जरा, बिल्कुल। थोड़ा जिहा गरम मसाला और सुटो। हाँ, बड़े छोटे छोटे मसले ले जाते हैं थाने में। मैंने अपनी आंखों से देखा कि बच्चे को उसने जाके पुलिस वालों को कि थाने में मेरे बच्चे को मारा है, बच्चा छोटा, उसने कहा कौन कौन है, उसने कहा फलां फलां, उसने कहा "वो निकालो जरा उनको", जब उनको निकाला तो वो उससे भी छोटे थे। हाँ, बड़ों को भी निकाला, उससे छोटे थे। अच्छा, अब ये ना अक्सर हम सुनते हैं बच्चों से शुरू होने वाली लड़ाई कत्ल तक जा पहुंची। बिल्कुल। अच्छा, ये तो वो लड़ाइयां ना जो नजर आ जाती हैं कि यार मोहल्ले की लड़ाई, लेकिन वो लड़ाइयां नजर नहीं आती जिनके पीछे एक मामूली सी बात होती है लेकिन वो केस बड़ा बन जाता है, वो केस जाली केस होता है। सही। मसलन ये है कि किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, अब कोई बुजुर्गों की कोई कमेटी ऐसी होती नहीं है, बंदा जाए तो किसके पास जाए? किसके पास जाए? एक आदमी जिसके बेटे को या उसको खुद उसके साथ कोई छोटी मोटी ज्यादती होगी, ये बिल्कुल जो मोहल्ले की सतह पे ही हल की जानी चाहिए थी, उस ज्यादती का तदारुक किया जाना चाहिए था, अजाला किया जाना चाहिए था, वो मोहल्ले में नहीं होता, इसलिए कि कोई बुजुर्गों की कमेटी ऐसी है ही नहीं। फिर वो कहता है कि जी मैंने तो इसका बदला लेना है, मैंने तो इसका कोई ना कोई जो है कानूनी रास्ता अपनाना है। फिर उसको कोई वकील दोस्त बताता है कि यार ये तो केस नहीं बनता, उसने तुम्हें धमकी दी है, ये भी बहुत छोटा सा केस बनेगा, जमानत हो जाएगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, तो तुम ये केस बनाओ, ये इल्जाम लगाओ इस पे। वो कोई बड़ा इल्जाम लगाता है ताकि पुलिस केस बन सके। अच्छा, जब पुलिस केस बन जाता है एक पार्टी पे, वो फिर मुकाबले पे उसके खिलाफ दूसरा बड़ा केस बना देती है, उसने अपनी जान छुड़ानी होती है, वहां पर भी वकील बैठे होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हम इनकी ऐसी तैसी फेर देंगे। वो ऐसी तैसी फेरने के चक्कर में पूरे हमारे सोशल फैब्रिक की ऐसी तैसी फेर जाती है। बिल्कुल सही है। यार असल में एहतराम और मोहब्बत एक दूसरे के साथ इतनी होती थी, और बाकायदा मोहल्ले में जो बुजुर्ग थे जी जी, उनको बाकायदा ऐसी हैसियत हासिल होती थी, उनका कोई ये नहीं था होता कि कोई उनके पास कोई ओहदा है, या कोई वो अफसर हैं, या कोई वो बड़े अमीर हैं, या उनके पास कोई कुव्वत नाफजा थी, ऐसा नहीं था। किरदार बड़ा अच्छा होता था। बुजुर्ग जो है इनकी हैसियत ऐसी होती थी, मुझे याद है कि वो कहते थे ना कि चलो यार बस ठीक है जाने दो, हाँ, तो सबको सुनना पड़ता था। अरे वाह, कोई आगे से ये कहने जोगा होता ही नहीं था उनके आगे, उनके किरदार को देखते हुए। किसी को डांट भी देते थे। मैंने खुद देखा है कि दूसरे सारे बुजुर्ग जो है वो चुप कर जाते थे, चलो यार कह रहे हैं बस ठीक है। अब उनका जो किरदार था ना जी अपना सारी जिंदगी का, जी जी, उन्होंने चुके सारे मोहल्ले के गम तकसीम किए, उन्होंने सारे लोगों के दुख दर्द में हिस्सा लिया, सबसे मोहब्बत की होती थी, इसलिए फिर लोग कहते थे कि भाई ये हमारा बड़ा है, जी बिल्कुल ये सही। हमारे बुजुर्ग हैं, ये कह रहे हैं अगर तो आप अपनी प्रीवियस हिस्ट्री देख लें, जी जी, ये हमारे हमदर्द हैं, फिर ये ठीक ही कह रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, सही। अब हुआ ये है कि जब इस तरह के जो बिल्कुल मामूली नौयत के केसेस जो हैं वो पुलिस तक पहुंचते हैं, तो पुलिस हमारी पहले कितनी एफिशिएंट है, उनके पास कितने वसाइल है, उनकी शोहरत क्या है, वो हमें पहले ही पता है सबको, तो जाहिर है कि उन्होंने कितना काम करना, उन पर हम मजीद बोझ बढ़ा देते हैं। फिर जब हम ये देखते हैं कि यार मैं पुलिस तक गया हूं और पुलिस ने मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर मैं दूसरा रास्ता अपनाता हूं कि यार पुलिस के किसी अफसर को, किसी कांस्टेबल को, SHO को 5,000 रुपया 10,000 रुपया लगाओ ताकि वो मेरे मुखालिफ को और कुछ नहीं तो एक दिन हवालात की हवा जरूर खिलाए। ये मेरी इज्जत का मसला है। रगड़ा आना चाहिए। अच्छा, फिर ये पुलिस के निजाम पर बोझ पड़ा, फिर इससे आगे बढ़ते हुए अदालत के निजाम पर, अदालत में हमारे जो मुकदमात का पहले ही बोझ है वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, तो अदालतों पे हम फिर केस दायर कर देते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि केस कुछ भी नहीं होता, केस सिर्फ एक छोटी सी अना का होता है, वो जो वहीं पे हल हो जाना चाहिए। कोई बात ना, 4 सामान दी गड्डी थल्ले क्यों रोड़े अटकाइए, छोटे मोटे छड़ बखेड़े सीने नाल लग जाइए। बहुत अच्छी। नाज़रीन, यहाँ में लेना है एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। छाबड़ी साहब, हुकूमत तो कहती है कि रिकॉर्ड बिजनेस हुआ है, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਮਗਰ ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ। ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਹੈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਉਹ ਸਰ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੋ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है कारोबारी दुनिया के ग्रीवियंसेस हुकूमत तक पहुंचाने के लिए मारूफ बिजनेसमैन KM छाबड़ी। किस बात के मारूफ रह गए हैं जुनैद साहब?
शक्को सुबाई कोई नहीं है कि अब तो घर में भी अहमियत ही खत्म हो गई। जी पर जाई आपकी जो यार लड़के पेके चली गई हुई है कि जा जा बड़ी तेरी खैर होवे, भुखा कल्ला मार। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਿਆ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਓਏ ਆਓ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੋਗਾ ਜੀ? ਹਰ ਤਰਫ ਚਟਿਆਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। बेल्जियम शीशा राह ही कुछ नहीं। छाबड़ी साहब आपने बेहतरीन कोट पैंट पहना हुआ है, हाथ ਉਹ में- ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਕੋ। ਭਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਸ ਹੱਥੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ये जो सोने की चैन है ये ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਰਹਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਈ ਹੋਇਆ, ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ। ਇਹ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਦੇ ਸਨ। ਇੰਚੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਓ ਬਾਊ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਨਾ ਛੇੜ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਨੂੰ। 3-4 इंच और बिकी तो यही फांसी का फंदा ही बन जाना। ਓਏ ਆ ਤੇ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ? ईमान से ये तो अपनी तरफ से बड़ा IMF के दिए हुए घुंघरू पैरों में बांध के नाच के मुजाहरा कर रहे हैं कि हम बड़े खुश हैं। वो जानते हो भाई, ये तत्ते तवे का डांस है। हाँ। छाबड़ी साहब, आप जैसा अगर ताजर परेशान है तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? और रब तेरी खैर करे, गल करना भी केड़ी है, गल कीती केड़ी हो? मैंने ये कहा है वो कि गल समझ केड़ी आउन डई हो? इसलिए बात ये है कि जैसे हर तरफ चटियाई हुई है। जी जी वो यार महंगाई ऊपर से देखो सामानों को चढ़ गई है। जी। कारोबार जमीन के साथ लिपट गया है। जिवें ईद जाके अब्बाई दी कवरना नहीं लिपटी दा, इंज कारोबार लिपटे यार जमीन नाल। लेकिन छाबड़ी साहब, हुकूमत तो कहती है कि रिकॉर्ड बिजनेस हुआ है। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਮਗਰ- ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ? ਜਨਾਬ। ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਹੈ ਤੂੰ ਗੱਲ? ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੋ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ? बॉस, ਇਹ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਓਏ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਹੀ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਹਾਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਈ ਜੇ, दो हो गई। ਓਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੀ ਯਾਰ। ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਵੱਟ ਲਿਆ ਜੇ? ਉਹ ਵੱਟ ਕੀ ਲਿਆ ਭਾਈ? ਕਿਹੜੇ ਵੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੱਟਕ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਏ? ਉਤੋਂ ਲੇਬਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। 25 ਤਰੀਕ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲਟਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਦਰਿਆ ਵੀ ਉਤਰਦੇ ਚੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉਤਰਨਾ ਚੜਨਾ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਖੁਸ਼ਕੀਆਂ ਛਾ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ? ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਬਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨ ਡਈਆਂ। ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦਰਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੇ ਤੋਂ ਪੱਠੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। हाय हाय। ਔਰ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਲ ਸਾਦੀ ਟਿਓਟਾ, जी जी ਉਹ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਇੰਜ ਨਿਕਲੀ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਜਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੇਲ ਕਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। हाय 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 हाय। बड़ा याद है मुझे, छोटे छोटे थे अब्बा जी के साथ लाहौर आने के लिए जब गुजराले रेलवे स्टेशन पे जाना ते ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪੈਰ ਹੀ ਲਾਂਦੀ ਸੀ ਰੇਲ ਕਾਰ ਤੇ ਫੇਰ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਯਾਰ। कोई गल नहीं, कभी खुशी कभी गम हो ਓਏ जाए। ਆਹੋ ਪੁੱਤਰੂ ਹੁਣ ਤੇ ਗਮ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। छाबड़ी साहब कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें। देखिए खजां में अगर पत्ते झड़ते हैं तो बहार में वही पत्ते ऊपर आ जाते हैं। ਉਹ ਕਿਸ ਖਜ਼ਾਨ ਦੀ ਤੇ ਬਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ? ਟਹਿਣ ਹੀ ਸੜ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਸੜੇ ਟਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪੱਤੇ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਹਿਣ? ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੜ ਛੱਡੀ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। चले छाबड़ी साहब, हर रात के बाद एक नई सुबह भी होती है, थोड़ा हौसला करें। ਉਹ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਧੀਏ, ਉਹ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੁਬਹ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ। ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡੇ ਆ। हाय हाय। ਰੱਬ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਓਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਏ, ਜਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਵੋ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ।
समझ नहीं लगी दिन रात दी केड़ियां रातां ते केड़े दिन छाबड़ी साहब आपके पास पैसा ऐसे ही आएगा जैसे ओ लोहा पुत्र तेनू की पता होवे ओ पैसा तू आप बड़ा पैसा फड़न वाली चिड़ी है पुत्र तेनू की पता पैसा कित्थों आंदा ते कित्थों जांदा है मेहनतां जिन्ना कीतियां उन्हां कोलों पुछ टैक्स इस कदर बेहंगम किस्म के लग गए हैं इस कदर वैसी दरिंदों की तरह पिछे लग गए ये कारोबारी इधर आते टैक्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਓਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਏ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉੱਡਣ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਬੋਲਦਾ ਸਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਉਂਝ ਬੋਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ छाबड़ी साहब हर तरफ दौलत की रेल पेल नजर आ रही है गाड़ियों की बुकिंग करवाएं तो 1.5 साल बाद जाके मिलती हैं गाड़ियां आप कह रहे हैं मारे गए लुटे गए ਓਏ ਹੋਰੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਖਰੀਦਣ ਡਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜੇ ਸਾਦੀ ਝੋਟਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ गौरी साहब ਹਾਂ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਜਮਲ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੂਏ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਾਰੇ ਹੋ ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਹਾਰੇ ਆਈਆਂ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਸੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਜੇ ਲੈ ਦੇ ਹੀ ਗਈ ਜੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਏਡੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਐਸੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਹਾਨ ਚੁਗਣੀ ਕਿਧਰੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਟਿਆ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜ ਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਫੋਨ पे कहती है जब हालात ठीक होंगे तो लेने आ जाना भाभी लड़के चली गई नहीं मुआयदा करके गई ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਰੇ ਬੀਵੀ ਲੜ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੇ ਉਤੋਂ 3 ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਓ ਜੇਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਖਵਾਵਾਂ जिनिया मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उस बुर्ज से मिलवाने लगा हूँ जी जिनके बगैर मेरा ख्याल है अद्धी खोखली हो जाती है फिल्म इंडस्ट्री लो जी आज आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उस बुर्ज से मिलवाने लगा हूँ जी जिनके बगैर मेरा ख्याल है अद्धी खोखली हो जाती है फिल्म इंडस्ट्री जी बल्ले 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 फिल्म डायरेक्टर हैदर चौधरी साहब क्या कहने क्या कहने क्या कहने उनका यही बहुत बड़ा काम है कि उन्होंने हमें मुनव्वर ज़रीफ बतौर हीरो भी दिया क्या बात है पंजाबी फिल्मों का बहुत बड़ा नाम थे मैं कहता हूं जी कि जिस तरह बड़े बड़े हीरोज के नाम बड़े बड़े लिखे जाते थे पोस्टर पे जी जी इसी तरह हैदर चौधरी साहब का नाम भी फिल्म पोस्टर पे बड़ा लिखा जाता था लोग उनका नाम पढ़ के आते थे अरे वाह ये उन चंद डायरेक्टरों में इक्का दुक्का डायरेक्टर में शुमार होते हैं जिनका नाम पढ़ के लोग टिकट खरीदते थे कास्ट नहीं थे देखते हैदर चौधरी लवो टिकटा हाय 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 क्योंकि हैदर चौधरी साहब फिल्म की जमानत होते थे कामयाब फिल्म की जमानत बेहतरीन फिल्म की जमानत होती जी बिल्कुल ऐसा ऐसा अजीब तजुर्बा किया हुआ उन्होंने वाह जी वाह क्या बात है आज आपको मैं उनके अनोखे तजुर्बे सुनाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार कैसा तगड़ा पाई था अच्छा जी हाँ जी ऐसे ऐसे अदाकारों को टाइटल रोल्स में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि बंदे की हैरत गुम हो जाती पहली फिल्म अपनी 1963 में जो बनी थी जी जी 30 मार खान पहली दफा अलाउद्दीन साहब को हीरो ले लिया अरे सुपर डुपर अलाउद्दीन साहब उससे पहले पॉपुलर विलन थे जी विलन के तौर पे आते थे मगर उन्होंने एज हीरो उनको कास्ट किया 30 मार खान और सुपर हिट फिल्म क्या बात है और उनके साथ नया चेहरा हीरोइन डाल दी शीरी शीरी उनको मुतारफ करा दिया जो देखते ही देखते फिर सफे अव्वल की अदाकारा बन गई और यार गाना इतना मशहूर हुआ इस फिल्म का नींबूआं दा जोड़ा सा बाग विचों तोड़िया नींबूआं दा जोड़ा वाह वाह जी वाह थैले ने भी मुल चीज को घट ही लई नींबू का जोड़ा भी तोड़िया ही है जी यार शायर ने शायरी लिखी है तो वो मुद्दा पा रहे हैं फिर
अगला तजर्बा देखे जरा, अदाकारा सीमा जिन्होंने सारी जिंदगी बहन और भाभी का रोल किया हुआ था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 1964 में हीरोइन के तौर पर फिल्म बना दी लाडली, टाइटल रोल करवा दिया, वाह वाह वाह, सुपर हिट फिल्म। वाह जी वाह। 1966 में सावन साहब को लेके गूंगा फिल्म बना दी। अरे देखो ना जरा, अलाउद्दीन साहब की तरह सावन साहब भी विलन मशहूर थे, विलन बिल्कुल सही। और उनको बतौर हीरो कास्ट करके तो गूंगा फिल्म बना दी। वो सिर्फ इसलिए, उसकी वजह ये थी कि ये फिल्म बनाना जानते थे, उनको पता था कि मैं फिल्म बनाऊंगा। फिर मुनव्वर ज़रीफ साहब को हीरो लेके फिल्म बना दी, हाय हाय। आज दा महीवाल। फिर उसके बाद नौकर वोटी दा। सर वो पहली फिल्म नौकर वोटी दा नहीं थी एज हीरो? नहीं 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 नहीं, आज दा महीवाल पहली फिल्म थी। ये फिल्म 14 सितंबर 1973 को रिलीज हुई थी। फिर 1974 में मुनव्वर ज़रीफ साहब को लेके तो सोलो नौकर वोटी दा, हाय हाय। ऐसी कॉमेडी फिल्म बनाई है, वाह 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 वाह। वैसे भी हैदर चौधरी साहब मुनव्वर ज़रीफ साहब के बड़े दोस्त थे। हाँ जी, आशिक थे जी। हाँ हाँ, और उन्होंने उनसे वादा किया हुआ था कि जब मैं डायरेक्टर बनूंगा तो तुम्हें हीरो लेके फिल्म बनाऊंगा। वो उन्होंने अपना वादा पूरा किया है जी। हैदर चौधरी साहब और मुनव्वर ज़रीफ साहब ने अपने फनी कैरियर का जो आगाज है वो इकट्ठे ही तकरीबन किया एक ही साल में। अरे वाह। फिर आगे देखें, 1979 में अली जहाज साहब, जो कि तब तक 150 फिल्मों में मुख्तलिफ कॉमेडी रोल कर चुके, छोटे छोटे रोल, और उनमें कोई भी फिल्म उनकी जो है वो इतनी खातरखा कामयाब भी ना हुई और कोई ऐसा लंबा रोल भी नहीं था उनको मिला। हैदर चौधरी साहब ने अली जहाज साहब को लेके फिर दुबई चलो बना दी। ओए 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 ओए, ओ हो, फिर चल सो चल। मैं कहता हूँ जी उनको भी सफे अव्वल का अदाकार बना दिया। बेशक। अल्लाह ताला बनाने वाला है, मगर वसीला देखे ना कैसा कैसा। बिल्कुल सर। अगले साल 1980 में नन्ना और अली जहाज साहब को लेके फिल्म सौरात जुआई बना दी। सुपर डुपर। नन्ना साहब को साथ टाइटल रोल मिले। वाह जी। यानी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दो कॉमेडियंस की सुपर हिट जोड़ी दे दी। फिर 1987 में अंजुमन को लेके दुलारी फिल्म बना दी, यानी सुपर हिट फिल्म। उसमें वो मुसर्रत नजीर साहिबा का गाना लौंगो आचा डाल दिया, बिल्कुल सुपर हिट। अच्छा, हैदर चौधरी साहब का ये भी रिकॉर्ड है कि बतौर हदायतकार अपनी 17 साला फिल्मी कैरियर में सबसे ज्यादा फिल्में बनाई हैं। 70 फिल्में, 70। 12 सालों में। अजीजी भाईजान, उन्होंने तो सांपों से काम लिया। हाँ हाँ, फिल्म नाचे नांगन। जी जी जी। नाचे नागन में इस्माइल शाह साहब हीरो थे मरहूम, और नादरा मरहूमा हीरोइन थी। सुपर हिट फिल्म। मैं कहता हूँ कि ऐसा सांपों से भी काम ले लिया, बल्कि उन्होंने दिनों च मैनू पूछते भी रहे ने, यार गोगा कितने में मैं एक सप लड़ाना है। यार सप उसमें गाड़ी चला रहा है तो सप लड़ नहीं सकता तुम्हें। यानी बहुत कमाल 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 हदायतकार थे। सही उनका आवाम की, व्यूअर्स की, तमाशाइयों की नब्ज पे हाथ था। वो जानते थे कि आवाम को कौन कौन सी चीज पसंद आएगी, सिनेमा बीनों को कौन सी चीज पसंद आएगी, वो उस फिल्म में होती थी, और उतनी ही होती थी जितनी पसंद की जाए। बिल्कुल सही। कमाल के फनकार, मतलब कॉमेडी की है तो बेतहाशा अच्छी जी, ट्रेजिक सीन किया तो ऐसा अच्छा ड्रामा, ऐसी खूबसूरत उसकी पिक्चराइजेशन जी जी। अगर फाइट करवाई है तो बहुत अच्छी। बेहतरीन जो फनकार हदायतकार होते हैं ना जी, जिस तरह असलम डार साहब का नाम है उसमें, उस तरह हैदर चौधरी साहब भी बा कमाल फनकार हुए हैं अपनी फील्ड के। और फिर 1990 में अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उनकी गलतियां, कोताहियां, खामियां माफ फरमा के उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता। आमीन। नाज़रीन, ये था आज का अस्पहाल, और आज की छोटी सी बात ये कि जब आप बोलते हैं तो वही कुछ कहते हैं जो आपको पहले से मालूम है, लेकिन जब आप सुनते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।